Hello, dear students. This is Priyanka Arora welcoming you all once again to Maths Online class. Yes, students. So, from today onwards, I am starting your revision session, and here you can see that these all are the list of chapters which are coming in your half yearly examination. That is, chapter number 1, large numbers. Chapter number 2, fundamental operations. Chapter number 3, factors and multiples. Chapter number 4, fractions. And chapter number 5, perimeter, area, volume, and maps, and then tables from 2 to 10. So we have covered all these topics, and now from today I am starting the revision. I have already provided you your paper pattern, so you know, students, that in the first section, that is section A, there will be objective type questions, and from chapter number 3, 4 and 5 I have already told you that which lines you have to underline in your maths book. When I was explaining you these chapters, I have told you at a moment that what you have to underline from your maths book. But related to your chapter number 1 and chapter number 2, I have not told you before that which statement you have to underline. Because you know very well, students, that from those statements anything can come in your exam in section A, objective type questions. So today in this lecture, I'm telling you that which statements you have to underline in your book. So please pay attention carefully and underline those statements in your maths book. And along with that, I'm explaining you all those statements also. Okay, students. So let us move on to all those statements which you have to underline in your maths book. Yes, see, students, first of all, page number 15 of your maths book, the topic is face value and place value. So you have to underline this statement: the face value of a digit in a number is the value of the digit itself. किसी भी नंबर की फेस वैल्यू मींस किसी भी डिजिट की अगर आप फेस वैल्यू निकाल रहे हो तो जिस भी डिजिट की आप फेस वैल्यू निकाल रहे हो वही उसका आंसर होगा, रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर। ये नहीं देखा जाता कि नंबर कौन सी पोजीशन पर है, बस जो भी डिजिट होगी वही उसकी फेस वैल्यू होगी। लाइक आप नीचे एग्जांपल देख सकते हो, इट्स 2 3 5 4 7 1। तो यहाँ पर 2 की फेस वैल्यू 2 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है, 5 की फेस वैल्यू 5 है। तो जो भी डिजिट आप देखोगे वही डिजिट उसकी फेस वैल्यू होती है। इसके बाद में आपको अंडरलाइन करना है प्लेस वैल्यू। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू इट हैज बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू डिसाइड होती है पोजीशन से। ओके, जो भी प्लेस होती है किसी भी नंबर की, लाइक अगर 100 प्लेस पर है या 1000 प्लेस पर है, तो जो भी नंबर जिस प्लेस पर है उसी अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ पर आप रिमेंबर के अंदर भी देखेंगे स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है? फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑफ द डिजिट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। सो दिस ऑल्सो यू हैव टू अंडरलाइन। लाइक यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास में नंबर गिवन है 77,77,777। अब अगर यहाँ पर ये जो 100 प्लेस पर 7 है, इसकी प्लेस वैल्यू अगर निकाली जाए तो कैसे निकालेंगे? पहले आप 100 प्लेस पर जो 7 है इसकी फेस वैल्यू देखिए। तो फेस वैल्यू क्या होगी? किसी भी नंबर की, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट होती है। तो यहाँ पर 7 की फेस वैल्यू 7 ही हो जाएगी। अब आप देखिए 7 100 प्लेस पर है, तो आप 7 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 700। ओके, सो दिस रिमेंबर ऑल्सो यू हैव टू अंडरलाइन। Fine. Then you have to move on page number 17. There you have to underline this to remember. It is 1 lakh is equals to 100,000. 1 lakh के अंदर 100,000 होते हैं, and then 10 lakhs is equals to 1 million. So underline these two. Then you have to come on page number 19. It is the number that comes just before a given number is called its predecessor. किसी भी नंबर के प्रीवियस जो नंबर आता है वो कहलाता है प्रीडेसेसर, और प्रीडेसेसर को आप फॉर्मूले में लिख सकते हैं नंबर -1। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 19 ऑफ योर बुक। देन द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर, किसी भी नंबर के बाद में जो नंबर आता है जस्ट आफ्टर, दैट इज कॉल्ड एज द सक्सेसर। और सक्सेसर को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला गिवन है दैट इज नंबर +1। ओके, इसमें आपको रिमेंबर को भी अंडरलाइन करना है। फॉर अ गिवन नंबर इट्स प्रीडेसेसर विल बी स्मॉलर एंड इट्स सक्सेसर विल बी
ग्रेटर। अगर आप किसी भी नंबर का प्रीडेसेसर निकालोगे तो वो प्रीडेसेसर गिवन नंबर से छोटा होगा, और अगर उसी नंबर का सक्सेसर निकालोगे, सक्सेसर होगा वो गिवन नंबर से ग्रेटर होगा. Okay, so this is on page number 19 which you have to underline. Then you have to come on page number 22. It is ordering number. So when number are arranged from smallest to greatest, कभी भी हम numbers को अगर smallest to greatest arrange करते हैं तो वो कहलाते हैं ascending order. That means छोटे से बड़ा. And then when the numbers are arranged from greatest to smallest, then we say that the numbers are in descending order. और कभी भी अगर आप नंबर्स को ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की सीरीज में अरेंज करोगे तो वो कहलाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर. सो अंडरलाइन दीज टू स्टेटमेंट्स. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 22. देन कम ऑन पेज नंबर 27. The number 0 does not have its own Roman numeral. नंबर 0 का कोई रोमन न्यूमरल नहीं होता है. हम नंबर 0 के लिए कोई भी रोमन नंबर यूज में नहीं लेते हैं. और रोमन न्यूमरल्स डू नॉट यूज द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू. रोमन न्यूमरल्स के अंदर कोई प्लेस वैल्यू फॉलो नहीं होती है. इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर प्लेस वैल्यूज होती हैं, बट रोमन न्यूमरल्स के अंदर कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता है. देन आफ्टर पेज नंबर 27 you have to come on page number 28. पेज नंबर 28 पे भी आपको ये रिमेंबर दिखाई देंगे. रिमेंबर के पॉइंट्स, इसको आपको अंडरलाइन करना है. ओनली लेटर आई, लेटर एक्स और सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड. ये तीन लेटर हैं जिनको हम रोमन न्यूमरल में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, किसी भी रोमन न्यूमरल के बिफोर लगाकर हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन में काउंट करते हैं. द नंबर v एंड l कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड. लेकिन नंबर v और नंबर l ऐसे दो नंबर्स हैं, रोमन न्यूमरल्स हैं, जिसको कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. सो प्लीज अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट. एनी क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. देन द नंबर i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली. नंबर i को जो लेटर i है उसको सिर्फ v और x में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. देन नंबर x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली. उसी तरीके से जो नंबर x है वो सिर्फ l और c में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी भी लेटर में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. So please underline all these three statements. Okay, now let us move on to the next, and then you have to directly come on page number 35. This is related to chapter number 2. It is each number to be added in an addition sum. Addition sum के अंदर जो numbers को हम add करते हैं उन numbers को कहा जाता है addend. Okay, और जो addition का आंसर होता है, like हम addends को जब add करके फाइनल आंसर निकालते हैं तो that is called as the sum. Fine. So underline these two statements. It is given on page number 35 of your book. Then you have to come on page number 36. It is related to the properties of addition. So the first property is order property. See, when the order of the addends is changed, the sum does not change. अगर हम एडेंट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी उसका सम चेंज नहीं होता है. लाइक आप 42,315 में 10,478 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 52,793. अब अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे, लाइक 10,478 को पहले लिखोगे और फिर 42,315 को लिखोगे, तभी भी आपका आंसर 52,793 आएगा. ओके, सो ऑर्डर कैन बी changed, fine, but the answer will remain the same. Then second property is additive property of 0. When we add 0 to a number we get the number itself. कभी भी हम किसी भी नंबर के अंदर अगर 0 को ऐड करते हैं तो वापस हमें वही नंबर मिलता है जिसमें हमने 0 को ऐड किया है. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 12,570 में जब 0 को ऐड किया तो वापस 12,570 ही रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है. देन grouping property. The sum of three or more addends remain unchanged even if the grouping of the addend is changed. अगर तीन या तीन से ज्यादा addends को हम ऐड करते हैं तो भी क्या होगा, उसका जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा. अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करोगे, ठीक है, तो भी जो रिजल्ट होगा वो सेम ही रहेगा. रिजल्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा. So you have to underline these three statements also in your maths book on page number 36. Then
come on page number 38, and on page number 38 there are the properties of subtraction. In subtraction we cannot change the order of numbers. हम number के order को change नहीं कर सकते हैं subtraction में. Then when a number is subtracted from itself the answer is 0. कभी भी same number को अगर हम subtract करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 0. Then when 0 is subtracted from a number the answer is the number itself. अगर किसी भी नंबर से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वापस वही नंबर फाइंड आउट होगा. ओके, देन these three statements are given on page number 38. After this you have to move on page number 42 where properties of multiplication are given. So it is while multiplying two numbers any change in the order of number does not change the product. ऑर्डर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो आपका रिजल्ट सेम ही आएगा. लाइक 654 को अगर 70 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 45,780 आ रहा है. अब अगर इसका ऑर्डर चेंज करोगे 70 को 654 से मल्टीप्लाई करोगे तभी भी आपका आंसर 45,780 ही कैलकुलेट होगा. देन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, इसको आपको अंडरलाइन करना है. यहाँ देखिए द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द नंबर itself. किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस वही नंबर फाइंड आउट होता है. देन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 0 इज ऑलवेज 0. किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको वापस 0 ही कैलकुलेट होगा. देन grouping property of multiplication, while multiplying more than two numbers any change in the grouping of number does not change the product. कभी भी हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी आंसर सिमिलर ही आता है. लाइक हम अगर 25 इंटू 2 कर रहे हैं इंटू 625 कर रहे हैं, अगर आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 31,250. अब अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे लाइक 625 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर आएगा 31,250. ओके, सो ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. सो दीज स्टेटमेंट्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 42. प्लीज अंडरलाइन इट. देन आफ्टर दिस you have to move on to page number 43. Okay, so on page number 43 you can see that two statements are there which you have to underline. When the multiplier is 1 the product is the multiplicand itself. जब multiplier जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लायर, और जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेंड. तो जब हम मल्टीप्लिकेंड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर वापस मल्टीप्लिकेंड ही मिलेगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें वापस वही सेम नंबर फाइंड आउट होता है. बट यू अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट हियर. ओके, देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हेन द मल्टीप्लायर इज 10 the product is obtained by adding a zero on the extreme right of the multiplicand. अब अगर आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली वही नंबर रहता है, बस उसके राइट हैंड साइड में एक जीरो ऐड हो जाता है. लाइक आप 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे सो मल्टीप्लिकेंड क्या है 25, तो पहले आप 25 लिखोगे फिर 25 के राइट हैंड साइड में एक जीरो आप प्लेस कर दोगे. सिमिलरली यहाँ देखिए 750 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 इज द मल्टीप्लिकेंड. इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750 के पास में दैट मींस राइट हैंड साइड में एक और जीरो आप प्लेस कर दोगे. ओके, सो अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट. इट इज ऑन पेज नंबर 43. Then you have to come on page number 47, properties of division. Here the first property is if we divide a number by 1 the quotient is the number itself. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चंट वापस वही नंबर मिलेगा. ओके, लाइक आप एग्जांपल यहाँ पे गिवन है 248 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर वापस क्या मिलेगा 248 ओनली. ओके, सो अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट. देन कम ऑन पेज नंबर 48. These are the remaining properties of division. It is if we divide a number by itself the quotient is 1. अगर हम सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है रिजल्ट आता है वो 1 रहता है. लाइक 45 को आप 45 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर 1 है. 125 को आप 125 से डिवाइड कर रहे हो तो भी आंसर 1 है. ओके, देन इफ वी डिवाइड 0 बाय अ नंबर द क्वेश्चन इज 0. अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं
तो हमारा आंसर 0 ही आएगा. फाइन. बट डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो इज मीनिंगलेस. हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर जीरो रहेगा. बट डिवीजन बाय जीरो इज not possible. It is meaningless. So underline these three statements. It is given on page number 48. Then one remember is also there on page 48 that you also have to underline. The remainder cannot be greater than the divisor. रिमाइंडर कभी भी आता है अगर डिवीजन के अंदर तो वो डिवाइजर से ग्रेटर नहीं होता है. इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर. Okay students, so this you also have to underline. After this you have to come on page number 49, and this is the last page of chapter number 2 which you have to underline. So it is regarding BODMAS. Okay, so here is the full form of BODMAS, where B stands for bracket, O stands for off, and off means multiplication, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, and S stands for subtraction. Okay, so this you have to underline. This I have already explained you when I have explained you the BODMAS topic, but you have to underline it. And according to BODMAS, you know, first of all, we solve the bracket. After bracket, we solve off, and off means multiplication. Then after off, we solve division. Then after division, multiplication, addition, and finally subtraction. So these are all the statements related to chapter number 1 and chapter number 2 which you have to underline in your maths book, and prepare all these statements because anything can come from these statements in your section A objective type questions. And the statements related to chapter number 3, 4 and 11 I have already told you when I have explained you those chapters. Okay students, so that's all for today. Please underline all these statements. Then I will see you back in next online class where I will be giving you more revision. Okay students, so thank you so much for today's class. Please take care of yourself.